It'd been quite some time that I was wondering how I should communicate my views on certain aspects of education. By the by, you all know that education as such per se is given one of the last priorities in our system, in our setup. Recent announcements by the government as to how to spend those 20 lakh crores of rupees as relief toward corona. That also shows that education remains at the bottom line. Well, I'm not here to discuss the performance of present government or condemn that of the previous government or eulogize or praise one or the other. No. In fact, I was wondering how I should communicate with you, how I should connect myself to you, to the viewers, and speak out my mind. It would not be out of place to mention that I decided to speak on the field of education, to speak my mind on it, just because I had been in the field of school education for over 35 years. My credentials are having worked in private school, government school including Kendriya Vidyalayas, CBSE schools, ICSE schools, day boarding and boarding schools, co-ed and non-co-ed schools. With that kind of background, spanning across 35 years, I thought I have, if not substantial, but a good enough of experience to share my feelings. 35 years is a long time. But when it comes to making contribution as an academician, as an educationist, I find somewhere my contribution probably has not been proportionate to the number of years that I have worked. Maybe I did not put in that much effort. Maybe I felt the system is somewhere not responding to those ideas which come from the people working in the field like me. Maybe because these decisions on education are decided within the four walls of air-conditioned rooms with so-called educationists, academicians taking decision. Either they decide on their own or they take input from a select group of people who claim themselves to be academicians. कल सरकार ने परसों शिक्षा पर ई विद्या का एक विचार सामने रखा है और उस पर लेके बहुत से वीडियोस कुछ क्षणों में आ गए, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन्होंने पक्ष में कहा वे विपक्ष के साथ जा रहे हैं, ऐसा बताया गया, और जिन्होंने इस ई विद्या के विपक्ष में कहा या पक्ष में कहा वो सरकार के साथ हैं या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हैं, ऐसा कहा गया। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता और ना मैं एक शिक्षाविद के नाते, एक शैक्षणिक कर्मचारी के नाते इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी बात जरूर सामने रखूँगा और इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। आखिर शिक्षा क्या है? And what is education? Education is something that brings about transformation in individual on day-to-day basis. व्यक्ति के जीवन, दैनंदिनी जीवन में वह कुछ परिवर्तन दिखाता रहे पॉजिटिव की ओर,
वही शिक्षण कहलाता, एजुकेशन कहलाता, शिक्षा कहलाती है। मैं बहुत बड़े बड़े विचार भी नहीं रखूंगा, बहुत बड़े बड़े कोटेशंस, उदाहरण भी नहीं रखूंगा, मैं स्टैटिस्टिक्स भी नहीं रखूंगा, और ना मैं पुराना इतिहास शिक्षा पे कहना चाहूंगा। इसके लिए बहुत समय है और बहुत लोग बैठे हुए हैं, विद्वान, सो कॉल्ड विद्वान सभी लोग हैं। मैं केवल ये बातें कहना चाहता हूं कि आखिर शिक्षा, भारत में शिक्षा का स्तर क्या है, क्यों है, और आखिर हम इस क्षेत्र में कहां जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ कैन वी अरेस्ट दिस फॉल? It means what is certain is that my opinion is that educational standard is falling. Educational standard is falling. शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मेरा बेसिक विचार यही है, और उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। शिक्षा का स्तर गिरने का तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि हम वैज्ञानिक पैदा नहीं कर रहे हैं, हम इंजीनियर्स पैदा नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं। एक वर्ग तुरंत इस बात को रखेगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विथ हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट चंक्स ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नोक्रेट्स एंड डॉक्टर्स हु आर वर्किंग अब्रॉड एंड डूइंग सो वंडरफुल, नो डाउट। IIT, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ से निकले हुए बच्चे मेधावी होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। JEE, CLAT, IIT, MBA और KVPY और NSTS, ये परीक्षाएं पास किए हुए बच्चे निश्चित रूप से बहुत मेधावी होते हैं। लेकिन उनकी मेधा का क्या उपयोग हो रहा है? ये मेधावी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या ये अपनी शिक्षा के साथ न्याय कर पा रहे हैं, या क्या शिक्षा के बाद उनको संतुष्टि मिलती है कि हमने जो शिक्षा पाई उसको हम अपने दैनंदिनी में, डेली लाइफ में उसका अप्लाई कर पा रहे हैं? थिंक ऑफ एन IAS ऑफिसर, ही इज आइदर ए डॉक्टर और ए मैनेजमेंट गुरु or an engineer, and so on and so forth. How does he contribute to the society? Well, he has his own ideas, and with whatever limitations he may have, he tries to make sure that he does justice to the chair that he is holding. That is all at the higher level. But I am talking about education at the grassroots level. I am talking about, मैं आधारभूत शिक्षा की बात करना चाहता हूं। मैं इतना आधारभूत भी नहीं होना चाहता अपनी बात में कि मैं 3R की बात करूं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। किसी जमाने में हमारी शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद यही हुआ करता था कि हम सामान्य आदमी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिटरेट बनाए, यानी 3Rs R, रीडिंग, उसको पढ़ना आ जाए, राइटिंग, उसको लिखना आ जाए, और अरिथमेटिक, आधारभूत गणित आ जाए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये उसको आ जाए, उसमें सक्षम हो जाए। तो पहली बात, क्या आज भी यही शिक्षा का उद्देश्य रहेगा? निश्चित रूप से नहीं। आप सब सहमत होंगे। और हमारे सिलेबस में भी सौभाग्य से CBSE का हो या राज्यों का हो या कोई सब एकल भारतीय जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, उसके सिलेबस में भी केवल 3Rs तक ही हम सीमित नहीं हैं। अब हमारे सिलेबस का स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ है। लेकिन बट, दैट्स अ बिग बट, व्हाट इज लैकिंग इन दैट सिलेबस? What we are not able to attain through that syllabus? Surely, as I said right at the beginning, we are successful in producing quality engineers, quality doctors,
quality technocrats, quality bureaucrats, and whatnot. But we are definitely not able to produce quality human beings. And that's where I come to. हमारी शिक्षा इंसान नहीं बना पा रही है. हमारी शिक्षा आदमी जरूर तैयार कर रही है, वर्क फोर्स जरूर तैयार कर रही है, मजदूर जरूर तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर जरूर तैयार कर रही है, पर इंसान नहीं कर पा रही. आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं. इंसान का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसमें ह्यूमन वैल्यूज हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसमें संस्कार हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें लोगों के प्रति प्यार पनपे, जिसमें मैं के बदले तुम का विचार पहले आए. आज बहुत बुरे दिनों से हम गुजर रहे हैं कोरोना के कारण. लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए हैं. उनकी स्थिति हम सब जान रहे हैं और इस पर जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा होगा. मैं इशारा केवल इस तरफ करना चाहता हूं कि इन लाखों मजदूरों की ओर सरकार के अलावा कुछ संस्थाएं देख रही हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, और ऐसे शायद हजारों संस्थाएं, हजारों ग्रुप्स भी हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे हैं इन मजदूरों की सफल यात्रा के लिए, अपने गंतव्य स्थल पर वो ठीक ठाक पहुंच जाएं. लेकिन उनकी आबादी कितनी है? कितने लोग हैं जो इस बात पे सोच रहे हैं? कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस बात पर सोचा है? उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी. कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि इन मजदूरों की व्यथा या इन ऐसे लोगों की व्यथा को जाने और उस पर रिएक्ट करें? ये नहीं कहते कि सड़क पर आए, पर मैं जरूर कहूंगा कि रिएक्ट, प्रतिक्रिया होनी चाहिए. हम में से कितने लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनकी स्थितियों को देखकर? दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा सिस्टम ऐसा हो गया है कि स्कूल बंद हुए और लंबा स्कूल बंद होने का रोना लेकर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ चले और आज 6-6 घंटा, 8-8 घंटा प्राइमरी स्कूल के और मिडिल स्कूल के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा रहे हैं. इस शिक्षा शब्द को यहां पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में रखना चाहूंगा. ये 6 घंटे 8 घंटे की सो कॉल्ड शिक्षा में क्या वास्तव में उसे 6 घंटे का आउटपुट मिल रहा है? बच्चा आज मोबाइल पर और शिक्षक आज किताबें पढ़ रहे हैं. बच्चा आज मोबाइल पर है और माँ बाप बैठकर उसके बाजू में पढ़ाई कर रहे हैं. क्या यही शिक्षा हम चाहते हैं? ये केवल मात्र एक शिक्षा का एक रूप है जिसको मैं सामने लाना चाहता हूं. और इसी ऑनलाइन एजुकेशन के कारण आज बच्चों का वार्धक्य शायद रुक रहा है. वह समझ नहीं पा रहा है कि अचानक एक 4 दिनों में, चाहे 1 माह में ऐसा क्या हो गया कि इस ढंग से हमको पढ़ाया जा रहा है बिना उसको कारण बताए. कोरोना का थोड़ा बहुत उसको जानकारी दे दी गई है और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. और ऑनलाइन पढ़ाई के न उसको तरीके आते हैं, न शिक्षकों को आते हैं, और पढ़ाई जारी है. और हम ये संतुष्टि ले रहे हैं कि यस, वी आर हैप्पी दैट यस चिल्ड्रन आर स्टडीइंग. I have many examples. I've been principal for the last 24 years in some of these reputed schools, both the government and the private, as I said earlier. And as an academician, as a person of school education, I've been moving about in the city and talking to many people in the field of academics across the country. Individual students
parents, teachers, principals, and also the decision makers. And I have come to a conclusion that this online education is not doing justice to the labor being put in by either by the teacher or by the child. शिक्षक 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठकर, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की थी, वो तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद अपने तरीके से पीपीटी बनाते हैं, अपने तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपने तरीके से उसको ट्रांसमिट करते हैं. उसकी गुणवत्ता, उसमें पढ़ाने की शैली, the quality of presentation that is made, the factual correctness of what is being said and taught, and maybe that many of them just copy pasting the thing from one to another. That puts a big question mark on the content. और इसके लिए मैं शिक्षकों को कतई दोष नहीं दूंगा, कारण शिक्षकों को किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई और शिक्षण शुरू हो गया. ये भी इस बात को इशारा करता है. दिस ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट वी आर टेकिंग एजुकेशन वेरी कैजुअली, दैट वी हैव स्टार्टेड ऑफ. Government is happy that every day 200 videos are being uploaded. Teachers are happy that they have followed the instructions of the government. All the board must be doing the same. I am not talking about one particular board. And children have lost their playtime with this online education, fitted into their scheme of things with very peculiar टाइमिंग्स. किसी की कक्षा 3 बजे शुरू होती है, दोपहर 5 बजे खत्म होती है. बच्चे ग्रुप्स में बैठे हुए हैं. एक टीचर दिन भर की मेहनत करते हैं और उसके बाद यूट्यूब में जाते हैं या कनेक्ट करते हैं जूम ऐप के द्वारा या दूसरे ऐप के द्वारा, मालूम होता है कि केवल 2 ही विद्यार्थी ऑनलाइन में बैठे हैं. नाउ दैट 2 child out of 20 is following up a class with me, and tomorrow another 4 join in. Day after tomorrow, out of these 6, 3 withdraw, another 3 join. How do I continue? I know those who are at the helm of affairs in the field of education, they will say at least something is going on. Something is better than nothing. मेरा यहाँ पे थोड़ा सा विरोध है. शिक्षा के क्षेत्र में समथिंग नहीं चलेगा. Do not take education so lightly that it finds the last place in the government agenda, like the way health also finds very bottom place at the bottom, and we see what's happening to the health sector today in the country. आज हेल्थ सेक्टर में क्या है, वही हाल शिक्षा का भी है, बल्कि उससे भी बुरा है. एक और राइट टू एजुकेशन के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों का सरकारीकरण हो रहा है, और दूसरी ओर ओएनजीसी, एयर इंडिया और नवरत्नों का निजीकरण हो रहा है. एज ए कॉमन मैन, मैं स्वयं इस दुविधा में हूं कि निजीकरण अच्छा है कि सरकारीकरण अच्छा है. दूसरा, क्या प्राइवेट स्कूल्स बच्चों के साथ पढ़ाई में न्याय नहीं कर रहे हैं, या सरकारी स्कूल न्याय नहीं कर रहे हैं? इन सब को लेकर यही हताशा है सब पालकों के बीच में, सब विद्यार्थियों के बीच में, कि कोवैडिस, QUOVADIS, it's a Greco-Roman word, 2 word, कोवैडिस,
वेयर गोवेस्ट दाउ, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है, इसके लिए हमको सोचना होगा। एक समग्र प्रयास करना होगा कि शिक्षा मूल्य आधारित हो। कम से कम प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा मूल्य आधारित हो। 3R से उठकर हम आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से हमने मूल्यों को तिरस्कृत कर दिया है, मूल्यों को पीछे धकेल दिया है। ये वो समय है जब ऑनलाइन एजुकेशन में बजाय विज्ञान और गणित और इसको पढ़ाने के, सिलेबस बेस्ड टीचिंग के, हम ऐसा कार्य करें जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन में हम मूल्यों को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनमें अच्छी बातें, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छी सोच ये लाने का प्रयास करें। और यदि ये 2-3 माह हमने सतत रूप से इस पर प्रयास किया, बच्चों के साथ लगातार जुड़े, उसके भी बहुत से तरीके हैं कि मूल्यों को हम कैसे बच्चों तक हम पहुंचाएं। गणित के माध्यम से, गणित में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएं जिससे मूल्य बच्चों तक ट्रांसफर हो। उदाहरण के लिए, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 5 रुपए दान किया और वहां पे मैंने 50 रुपए दान किया। दान क्या होता है, इसकी भावना उसमें आए। विज्ञान में हम अप्लाइड साइंस की ओर ज़्यादा जाएं कि जनता का कैसे भला हो सकता है। जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ऐसी क्या चीज़ हो जिसको हम अप्लाई कर सकें डे टू डे लाइफ में फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। और हिंदी, अंग्रेजी और भाषाओं में तो मॉरल वैल्यूज़ को सिखाने का अपार भंडार है, अपार स्कोप है। So dear friends, through this small talk, I just wanted to make your mind churn and think as to what ails Indian education, AIL, what ails Indian education, हमारी भारतीय शिक्षा की बीमारी क्या है, इस पर हम थोड़ा सोचें और विचार करें। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, और इन सब समस्याओं का निराकरण मूल रूप से शिक्षा, एजुकेशन और एजुकेशन ही है, बशर्ते उसकी दिशा हो, बशर्ते उसका गुण हो और बशर्ते वह रिजल्ट ओरिएंटेड हो। I'll continue with my conversation. Hope you would hear my conversation, my talk through the end of the video. If you liked it, please do not hesitate to click on like and also subscribe on YouTube and stay in touch. Thank you very much. Thank you.